So we'll start with 16th question today. And if R is the universal gas constant, the amount of heat needed to raise the temperature 2 moles of an ideal monatomic gas from 273 to 373 when no work is done. Actually ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो रहा है, हमने ऑलरेडी किया है ये क्वेश्चन बिकॉज 300 R आता है इसका आंसर. वी हैव ऑलरेडी डन दिस, हमको ऑलरेडी पता है delta Q is equal to delta U plus delta W. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन जीरो है तो डेल्टा Q इज जस्ट डेल्टा U and delta U is NCV, change in temperature. And you already know what is CV. CV आपको पता है in terms of R, तो R upon gamma minus 1 आता है CV into change in temperature. And हमारे पास 2 है R gamma मोनोटोमिक गैस के लिए gamma की वैल्यू 5/3 होती है, पता होनी चाहिए आपको. -1 into dt is 100 Kelvin, right? It's very simple. 5/3 minus 1 is 2/3. 2/3. So 2 3R by 2 into 100. तो ये 2 और ये 2 cancel तो 300 R. ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, but no issues. Easy question. Next question. Next question तो direct formula ही है. The work done in an adiabatic process is given by. That's why I was asking you what is the formula for work done in an adiabatic process. It's directly this one. You have to solve it. I am not going to solve it here. You need to remember. NR. अभी ऐसा लिखो T initial minus T final upon gamma minus 1, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो. Normally मैं ऐसा लिखता हूँ. NR 1 minus gamma into change in temperature. Q क्योंकि फिर change in temperature होता है final temperature minus initial temperature upon 1 minus gamma. So I never write it as T minus T2, I always write it as T2 minus T1. It is the same thing. It is the way you have to remember it आपके. So easy question था. Next question. A gas expands according to the relation V equal to K T to the power of 2/3. Work done when the temperature changes by 60 Kelvin. अभी 60 Kelvin से temperature change हुआ था, मतलब definitely आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि this process is not isothermal. तो there are two ways out of solving this question. पहला तो आपको पता है कि work done क्या होता है. You know what is work done. Work done is integration of PdV from V1 to V2. Right? तो पहले तो मैं dV निकालूंगा यहाँ से. If I take derivative of volume, K constant, T raised to 2/3 का derivative 2/3, T raised to 2/3 minus 1 into dt, derivative temperature. या फिर आप बोलो taking derivative with respect to temperature on both sides, ऐसा भी लिख सकते हो. तो derivative होगा लेकिन ये derivative में बाद में shift करने वाला हूँ, तो एक ही बात है. It is one and the same thing. Okay, so I can just write it like this. तो हमको dV मिल गया, तो dV आपका आ जाएगा 2/3 K T raised to 2/3 minus 1 is T raised to minus 1/3 super. कितना मिल गया? अब अगर मैं इसको V से डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे वर्क डन के इक्वेशन में dV by V लगेगा Q. I'll tell you later. So okay, let me do this way. अगर हम लोग ये आइडियल गैस हमको पता है, okay, is it ideal gas? So what we can do is, we know PV is equal to nRT. Okay. तो PV is equal to nRT है, तो P is equal to nRT by V है, तो V1 to V2 nRT by V, तो RT by V dV. 1 मोल ऑफ गैस है ऐसा मान के चल रहे हैं, तो dV by V लगने वाला है हमको यहाँ पे सॉल्व करना है. तो हमारे पास dV है, हमारे पास V है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं. तो dV by V, dV क्या है 2/3 K T raised to minus 1/3 dt, और V क्या है आपके पास K T raised to 2/3. ठीक, डिवाइड कर दिया, K कैंसिल हो गया, तो मुझे मिल जाएगा dV by V इज इक्वल टू T को ऊपर ले जाऊंगा, तो T raised to minus 1/3 minus 2/3 दैट इज minus 1/3, और ये ऊपर जाके minus 2/3 minus 1 minus 2 minus K upon 3 minus 1 dt. मतलब बेसिकली ये dt by t आ गया. It is dt by t और 2/3 रहेगा वहाँ पर फोर्स, तो 2/3 यहाँ पे आएगा, right? So therefore work done W is nothing but
V1 to V2 की जगह पे T1 to T2 हो, क्योंकि हम लोगों ने वॉल्यूम से टेम्परेचर में लेके आ गए इक्वेशन को। RT और dV by V 2 by 3 dt by T। तो T D भी कैंसिल, 2 by 3 R कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया, 2 by 3 R कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dt T1 to T2। हमको पता है इंटीग्रेशन dt T1 to T2 क्या होता है, you should know this। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो T फाइनल माइनस T इनिशियल तो हमको ऑलरेडी दिया है 60 के लिए, 60 1 जा एंड 20 जा, 20 into 2 is 40 R। So option number C should be the correct answer, right? There was one more way out। आप और एक तरीके से कर सकते थे इसको। कैसे कर सकते थे? You should know कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, अभी हमने देखा वोल्टन का फॉर्मूला। लेट्स जस्ट सी इफ वी कैन डू इट और नॉट। तो वोल्टन हमने देखा इससे पहले के एग्जांपल में, T2 minus T1 अपॉन 1 minus gamma R, राइट। उसमें और एक चीज़ थी n नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं 1 ही मानता हूँ, आई नॉट राइट डाउन 1 है ना। nR T2 minus T1 अपॉन 1 minus gamma, ऐसा था ना वोल्टन एडियाबैटिक प्रोसेस। देन व्हाट यू हैव लर्नड, और एक चीज़ आपने सीखा है, T raised to gamma equal to constant, और एक चीज़ सीखा था रिलेशन बिटवीन V and T फॉर adiabatic process। What was the relation? What? Wait. We know that for an adiabatic process, T V raised to gamma minus 1 equal to constant। तो हमारे पास गिवन में क्या है? हमारे पास गिवन में है K, सॉरी V, हमारे पास गिवन क्वांटिटीज में है V इज इक्वल टू K T रेस्ट टू 2/3। तो यहाँ पर आता है 2/3, T रेस्ट टू 2/3 बना लेके है, ऊपर लेके गए, तो V T रेस्ट टू माइनस 2/3 इक्वल टू K। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में अगर कंपेयर करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा फ्रॉम 1 and 2 व्हाट आई विल गेट इज गामा माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2/3। तो गामा इक्वल टू माइनस 2/3 प्लस 1 है ना, माइनस 2/3 प्लस 1 मतलब 1 माइनस 2/3 मतलब 1/3। गामा की वैल्यू मिल गई, टेम्परेचर से पता था, वोल्टन का फॉर्मूला में डाल दो, R दिस इज 60, राइट। 1 minus 1/3, हाउ मच इज 1 minus 1/3? 2/3। तो 60 R upon 2/3, करेक्ट। 60 R upon 2/3, 1 जा एंड दिस इज 30, तो ऊपर गया तो 90, तो वोल्टन हमारा आ रहा है 90 R, करेक्ट। इसका मतलब ये जो प्रोसेस हमने ली है एडियाबैटिक, इससे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोगों को बोला नहीं है वहाँ पे कि दिस एडियाबैटिक है, राइट। नोट से बोला है टेम्परेचर चेंज होगा, ऐसा नहीं बोला कि ये एडियाबैटिक। अगर ऐसा बोला होता गैस एक्सपांड सडनली, ऐसा बोला होता तो ही आप एडियाबैटिक उसको कंसिडर करके यू कैन सॉल्व with the help of method 2, otherwise you cannot use this method 2। तो method 2 आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, यूज नहीं कर सकते हो यहाँ पे, राइट। so you just have to do in the way I have told you earlier, right। so we cannot use adiabatic process here। next question, number 19। This is important question क्योंकि यहाँ पे हम लोग आपने जो 11th में थर्मल एक्सपेंशन सीखा था वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। So two rods of length L1 and L2 are made up of materials whose coefficient of linear expansion are alpha 1 and alpha 2. If the difference between two lengths is independent of temperature, then basically आपको पता है ये बोल रहा है it is independent of temperature, right? Then so you need to know कि I mean in thermal expansion in 11th you have learned with temperature, जब आप एक रॉड को हीट करोगे तो वो एक्सपांड होता है, right? It is somewhat related to that particular topic। Two rods of length L1 and L2 are made up of material coefficient with coefficient of linear expansion alpha 1 alpha 2। Difference between the length of two rods, difference between the length of two rods, difference between important independent of temperature, right। डिफरेंस बिटवीन, सबसे पहले तो ये बताना चाहिए आपको
if change in length is delta L, अगर मैंने चेंज इन लेंथ डेल्टा L लिखा है तो आपको 11th स्टैंडर्ड में बताया गया था कि चेंज इन लेंथ itself proportional to original length and change in temperature proportional to, तो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू लिखते हैं और ये जो कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनलिटी का उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पे एक रॉड है, वन डायमेंशनल केस है तो इसलिए हम लिखते हैं ऐसा। अब change in length for the first rod delta L1 is equal to, मैं लिखता हूँ अल्फा 1 पहले रॉड का लीनियर कोएफिशिएंट, L01 original length of the rod delta T change in temperature। Similarly मैं सेकेंड रॉड को लिख सकता हूँ डेल्टा L2 इक्वल टू अल्फा टू L02 डेल्टा T, राइट। डिफरेंस इन लेंथ क्या आएगा फिर, दोनों का लेंथ का डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस इन लेंथ, डिफरेंस इन लेंथ इज दोनों के लेंथ का सब्ट्रैक्शन, मतलब L2 माइनस L1 दोनों। अभी L2 मतलब क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ, क्योंकि हम लोगों ने अगर हीट किया है उसको तो लेंथ बड़ा है, इसलिए ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ, और फर्स्ट रॉड का क्या आएगा, ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज। फिर हमने इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिला L02 माइनस L01 और प्लस डेल्टा L2 माइनस डेल्टा L1, राइट। सिर्फ हमने उसको सिंप्लीफाई किया है बच्चे। और आपको क्वेश्चन में क्या पता है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू लेंथ्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब ये जो है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, राइट, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ओरिजिनल लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ऐसा बोलना चाहते हैं टेम्परेचर, मान लें टेम्परेचर लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, राइट, गुड। तो अभी L2 माइनस L1 ओरिजिनल लेंथ के डिफरेंस पे और चेंज इन लेंथ के डिफरेंस पे डिपेंड करता है, राइट। L2 minus L1 depends on difference of original length and change in temperature, change in length zero temperature। लेकिन ओरिजिनल लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, मतलब ये जो डेल्टा L2 माइनस डेल्टा L1 है ये भी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। Why? Otherwise ये इक्वेशन इक्वेट नहीं होगा। You have to understand this. The idea is क्वेश्चन अगर पढ़ोगे ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, ओरिजिनल लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बोला है हम लोगों को, डिफरेंस बिटवीन द टू लेंथ्स, डिफरेंस बिटवीन द टू ओरिजिनल लेंथ्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, और हमने जो इक्वेशन लिखा है इक्वेशन नंबर 1, राइट। इस पूरे इक्वेशन में तीन टर्म में सिर्फ एक ही चीज है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वो है ये डिफरेंस होना चाहिए जीरो। क्यों जीरो होना चाहिए, इसलिए जब इनिशियली हम लोगों ने रॉड्स को हीट नहीं किया था, टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था, राइट, तो उस केस में देयर इज नो चेंज इन लेंथ, मतलब ये जो टर्म है ये जीरो होना चाहिए, इसलिए जीरो लिखा है, दैट्स इट, और कोई रीजन नहीं उसके पीछे। तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा L2 इक्वल टू डेल्टा L1, और डेल्टा L2 आपने फाइंड करके रखा है अल्फा 2, उसके बाद L02 डेल्टा T इक्वल टू अल्फा 1 L01 डेल्टा T, डेल्टा टी दोनों सेम ही है, मतलब ओरिजिनल लेंथ का रेशियो जो होगा वो आपको मिल जाएगा L01 अपॉन L02 इक्वल टू अल्फा 2 बाई अल्फा 1, ये ओरिजिनल लेंथ का रेशियो है। मैंने L02 बोला है, आप कैपिटल L2 बोल सकते हो, डजंट मैटर। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन इजी है। टू rods of length L1 and L2 are made of material whose coefficient of linear expansion are orthogonal for 2। तो L1 और L2 ये जो है ये ओरिजिनल लेंथ भी हो सकती है जब हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया तब, राइट।
लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो मैं मान लूँगा L01 और L02 ये ओरिजिनल लेंस है, ओरिजिनल एट सम टाइम व्हेन यू हैव नॉट रेस्ट टेम्परेचर L1 और L2 इज आर इक्वल टू L01 एंड L02। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, राइट? इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट पार्ट, बट आपको सिर्फ ये समझना है कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। डिफरेंस बिटवीन टू लेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब ओरिजिनल लेंस जो था, ओरिजिनल लेंस जो था वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था। तो L02 और L01 इज इंडिपेंडेंट टेम्परेचर, राइट? सॉल्व करते गए आ गया। अदरवाइज आई कैन टेल यू शॉर्टकट, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ से आ गया। डिफरेंस बिटवीन टू लेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर जब बोला होगा तो डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2 लिखना खत्म करना। अल्फा 1 L1 डेल्टा T इक्वल टू अल्फा 2 L2 डेल्टा T। डेल्टा T कैंसिल, L1 अपॉन L2 इक्वल टू अल्फा 2 बाय अल्फा 1। तो तुमको ये एक्चुअली करना चाहिए। क्यों बताया? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स में डू दिस। तुम हमको जो उठाओगे ये लिखेगा, तुमने हमको बताया उठाओगे तो ये लिखेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो, राइट? हमको नहीं करना, हमको सीधा सीधा दोनों का चेंजिंग लेंथ को इक्वेट करना है, खत्म करना है। गुड, क्वेश्चन इजी है, सो देयर इज नथिंग एक्चुअली, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि हमको घूम घूम के पूछा है क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। Two identical containers A and B with frictionless pistons contain the same ideal gas at the same temperature and the same volume. तो दोनों का volume temperature same है. The mass of the gas in A is Mv, in B is Mv. The gas in A cylinder is now allowed to expand asymptotically to the final volume 2V. दोनों का volume B में 2V हो रहा है. The change in pressure in A and B are found to be delta V and 1.5 times of delta V respectively. Then, तो बहुत first of all क्वेश्चन इट इज वेरी इजी। दो कंटेनर है, दोनों में प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, सेम आइडियल गैस है। सिर्फ एक में मास एम है, दूसरे में मास एम बी है। दोनों का भी 2B तक जाने देंगे हम लोग। वी अलाउ द गैस टू एक्सपांड और वॉल्यूम B से 2B होगा। तो चेंजिंग प्रेशर इन A इज डेल्टा V इन B इज 1.5, राइट? ओके, सो आपको पूछा है मास का रिलेशन क्या होगा। मैं पहले आपको बताता हूँ मेथड नंबर 1, फिर देखेंगे मेथड को एग्जिस्ट करता है कि नहीं। व्हाट इज प्रेशर एनर्जी? ठीक, सो आई कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ मास। तो P इज इक्वल टू m अपॉन कैपिटल M RT बाई V। तो पहले कंटेनर में जो गैस है उसके लिए P लिख सकता हूँ मैं, Ma अपॉन M। कैपिटल एम नहीं लिख सकते क्योंकि गैस का का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, राइट? उन्होंने बोला है सेम गैस का मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा। आर टी, टी भी सेम लिख रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बोला है अपॉन बी, राइट? गुड, मैं बी ए लिख सकता हूँ बेसिकली क्योंकि वॉल्यूम इज चेंजिंग। तो ऐसा करते हैं, जस्ट मॉडिफाई दिस लिटिल, जस्ट अ लिटिल, ओके, जस्ट अ लिटिल। आखिर इसको P1 और P2 बोल देते हैं। पहले हम लोग एक कंटेनर की बात कर रहे हैं। एक कंटेनर में इनिशियल प्रेशर P1, फाइनल प्रेशर P2। पहले कंटेनर में, एक कंटेनर में, तो ये आ जाएगा Na अपॉन कैपिटल M RT बाई V2, राइट? अब मैं लेता हूँ डेल्टा P। डेल्टा P को पता है फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर होता है। जब आप P2 माइनस P1 करोगे तो उसमें से सब कुछ कॉमन निकलेगा एक्सेप्ट फॉर V1 V2, राइट? तो Ma RT by capital M 1 by V2 minus 1 by V1 is equal to, अभी आपके पास आ गया, आपके पास V2 दिया हुआ है तो Ma RT by capital M 1 by 2V minus 1 by V। हाफ में से 1 गया तो माइनस हाफ होगा, राइट? तो या तो बचेगा माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस Ma अपॉन कैपिटल M RT by V। This is delta P, right?
ठीक, तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास प्रेशर एन आर टी बाई वी है, एन इज एन बाई कैपिटल आर टी बाई वी आ गया प्रेशर। अब मैं पहले एक ही कंटेनर की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बी कंटेनर, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट ए। ए में इनिशियल प्रेशर विल बी एम ए अपॉन कैपिटल एम आर टी बाई वी वन। अब जब वॉल्यूम V से 2V होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा, तो P2 इज MA अपॉन M RT by V2। मैं एक ही कंटेनर की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेकंड कंटेनर हियर, राइट। तो डेल्टा P हमारे पास आ गया P2 फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, और हमको मिल गया सॉल्व करते करते माइनस MA by कैपिटल RT by V। गुड, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए था कि ये आपको दिया हुआ है डेल्टा P, चेंजिंग प्रेशर इज दिस। सिमिलरली अगर मैं कंटेनर बी के लिए करता हूँ, अभी कंटेनर बी के लिए आपको पता है चेंजिंग प्रेशर 1.5 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी, राइट। एंड इफ यू सॉल्व दिस सेम मेथड P2 minus P1, P2 आपको पता है एम बी अपॉन कैपिटल एम आर टी बाई V2 माइनस एम बी अपॉन कैपिटल एम आर टी बाई V1। फिर ये V1 V2 एक्चुअली वैल्यू सेम है, लेकिन हम कंटेनर बी की बात कर रहे हैं तो डजंट मैटर, क्योंकि वहाँ पे भी ए कंटेनर में भी इनिशियल बी था और फाइनल जो था वो 2 था, तो यहाँ पे भी वो सेम है। तो व्हेन यू सॉल्व दिस थिंग आपको मिल जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी इज इक्वल टू एम बी बाई एम आर टी बाई बी, इसका नेगेटिव साइन है, राइट। सॉल्व करने के बाद बाय द वे एक सिर्फ एक छोटी सी गलती हुई है, गलती नहीं हुई बेसिकली, हाफ माइनस वन माइनस हाफ, तो ये मैं माइनस हाफ यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा, सिंपल, राइट। देन व्हाट यू हैव टू नो इज दिस कि 1.5 डेल्टा पी, लेकिन डेल्टा पी इक्वल टू 1 से हमारे पास ऑलरेडी है, we already have delta p, so 1.5 times of delta p from equation 1 is minus half Na by n RT by V equal to right hand side पे minus NB by 2n RT by V। तो RT by V cancel, capital M 2 to cancel, negative cancel, राइट। सब कैंसिल हो गया तो बचा क्या फिर 1.5 एन ए स्मॉल एन ए इज इक्वल टू एन बी, तो दिस इज 3/2 एम ए इक्वल टू एन बी, तो 3 एन ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एन बी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए था। चेंजिंग प्रेशर इन ए कंटेनर, यहाँ पे चेंजिंग प्रेशर इन बी कंटेनर आपको दिया है 1.5 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी, राइट, करेक्ट। तो ये P2 माइनस P1 आ गया फॉर कंटेनर बी, फॉर कंटेनर बी। तो इनिशियल फाइनल प्रेशर इज NB by capital M RT by V2 and initial is NB by capital M RT by V1। सब कॉमन निकाल दिया, 1 by V1 1 by V1 1 by V2, मैं एक सीधी देता हूँ सही तो आपके लिए यहाँ पे इट इज वेरी सिंपल थिंग, 1 by V2 1 by V1, V2 2 भी है और V1 भी है, सब करने के बाद आपको मिलेगा ये स्टेप। फिर आप डेल्टा पी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो 1.5 टाइम्स ऑफ एम इक्वल टू एम पी 3/2 एम इक्वल टू एम पी, राइट, राइट। अब ये है लंबा मेथड, हमको जो करना नहीं है, हमको क्या करना है शॉर्टकट। अभी शॉर्टकट मतलब कैसा, ओके आई जस्ट पुट दिस ऑन द नेक्स्ट पेज एंड आई टेल यू हाउ टू यूज दिस, सॉल्व दिस इन अ शॉर्टकट मेथड। ओके, तो शॉर्टकट कैसे करेंगे, सी हमको दो कंटेनर दिए हैं, मैंने पहले ही एक कंटेनर की बात कर ली, डेल्टा पी, ये आपको पता है एन आर टी बाई बी, ऐसा था, ऐसा था नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा था कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग कब डेल्टा लेते हैं, कब हम लोग सिर्फ पी लेते हैं, तो पी इज एन आर टी बाई बी, तुमको ये करना, गुड। You can go one step ahead, तुम यहाँ पे पहले कंटेनर में P2 और P1 फाइनल और इनिशियल की वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, और ये आपको पता है स्मॉल एम बाय कैपिटल एम आर टी बाई बी, राइट।
अब व्हाट आई विल डू इज फ्रॉम दिस, ये ऑलरेडी चल रहा है मेरे दिमाग में। अच्छा, तो कैपिटल एन तो सेम है क्योंकि ए कंटेनर और बी कंटेनर में गैस सेम है। आर कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, उन्होंने बोला है सेम टेम्परेचर, मतलब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ गया स्मॉल एम अपॉन, राइट। तो फाइनल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एम ए अपॉन 2d, और इनिशियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एम ए अपॉन बी। तो पहले केस में चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी इज डेल्टा पी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, राइट, प्रोपोर्शनल टू दिस। मैं क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहा हूँ, कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। सो दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दिस विल बी na/2 will be the negatives, है ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करूँगा हाफ में से 1/2 है यहाँ पे 1, राइट, तो ऐसा है। सिमिलरली डेल्टा पीवी के केस में भी which is 1.5 times of delta P, right, that is proportional to P final minus P initial in B case, तो ये भी आ जाएगा minus MB/2B, ऑलमोस्ट है, बराबर, राइट। अब हमको पता है गिवन कंडीशन के हिसाब से डेल्टा पीवी इज 1.5 टाइम्स ऑफ डेल्टा पीए। डेल्टा पीवी बाय डेल्टा पीए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, राइट। क्यों किया, क्योंकि मुझे ये सब पता है प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे, तो मुझे ये भी पता है कि जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा, इसको और इसको डिवाइड करूँगा, मेरे पास क्या बचने वाला है, सिर्फ MB/ME, और क्योंकि यहाँ पे डेल्टा PB बाई डेल्टा PA ये 1.5 था, मतलब 3/2 था, तो MB/MA 3/2 आना चाहिए, राइट। नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी में कभी काम ही नहीं किया ना हम लोग मैं फुल सॉल्यूशन के पीछे भागते थे। मैं वापस बता रहा हूँ पूरा का पूरा वापस बता रहा हूँ, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क इन प्रोपोर्शनलिटीज। Always we don't have to go for full solutions. मैं अगर एक कंटेनर की बात कर रहा हूँ, एक कंटेनर वो है, कोई भी कंटेनर होगा, प्रेशर का ये फॉर्मूला होगा, बराबर, उसमें से ये कांस्टेंट है क्या, ये दोनों कंटेनर में गैस से में टेम्परेचर से में आर का कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर ये प्रोपोर्शनल हुआ क्या एम/वी, राइट। तो जब मैं लिखूंगा इनिशियल प्रेशर, तो इनिशियल प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा MA अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, V था, बराबर, V था। फाइनल प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा MA/2V2, राइट, तो डेल्टा P ए गैस का चेंज इन प्रेशर, एक कंटेनर का चेंज इन प्रेशर, वो कैसे लिखते हो आप, P फाइनल माइनस P इनिशियल। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ कांस्टेंट छोड़ दिया, तो मैं सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी यूज कर रहा हूँ, मतलब दिस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब कितना, -12 MA अपॉन V, बराबर। सिमिलरली मेरे पास बी गैस में भी ऐसा आएगा क्या, ऐसा आएगा, बी के लिए भी ऐसे ही आएगा, राइट। पर हमको दिया क्या है, हमको क्या बोला है कि डेल्टा पीबी मतलब बी गैस के लिए चेंज इन प्रेशर है 1.5 टाइम्स ऑफ डेल्टा पीए है, बोला यहाँ पे, बराबर, क्वेश्चन में बोला है। तो व्हाट इज डेल्टा पीए, डेल्टा पीए और डेल्टा पीबी का रेशियो क्या मिल गया तुमको, 1.5 मतलब 3/2, बराबर, राइट। अब जब मैं रेशियो लेता हूँ तो मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा देता हूँ क्योंकि कांस्टेंट तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाता है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता इसका राइट और इसका डोंट राइट, ध्यान दो वहाँ पे ध्यान समझाओ फिर भी ध्यान दो। तो डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा पी ए जब करूँगा तो मैं सिर्फ
वहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस हाफ एन बी बाई वी अपॉन माइनस हाफ एम ए बाई वी, ये आ गया 3/2, माइनस हाफ बी वी कैंसिल, तो एम बी बाई एम ए मुझे ये मिल जाएगा 3/2, राइट। तो 3 एम ए इक्वल टू 2 एम बी, ये आ गया, राइट। तो सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी में काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वी आर नॉट राइटिंग डाउन कांस्टेंट, वी आर जस्ट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स, दैट्स इट। 21, 1 mole of an ideal gas undergoes the process P is equal to P0 upon 1 plus V0 by V square. P0 and V0 are constants. Change in temperature of the gas when the volume is changed from, तो डेल्टा V जो है आपका दिया है फाइनल, मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल, मतलब 2V0 माइनस V0, मतलब V0 is this change in volume. In short, this is what we are trying to say. What is the change in temperature? What easy question है, why? Because we know PV is equal to nRT, right? और 1 mole of gas वाला तो n की वैल्यू 1 है, तो PV is equal to RT, P is equal to PV by RT। तो इनिशियल टेम्परेचर क्या आएगा और फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा, ये देखना है। इनिशियल टेम्परेचर क्या आएगा, यू हैव टू नो दिस, राइट। तो हाउ डू यू फाइंड आउट इनिशियल टेम्परेचर? पहले तो हमको इनिशियल प्रेशर पता होना चाहिए, पता है कि हम लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। 1 mole of hydrogen undergoes the process P is equal to P0 upon 1 plus V0 by V square. P0 and V0 are constants. Change in temperature of the gas when the volume changes from V equal to V0 to V equal to V0 is। तो हमको ये तो पता है इनिशियल वॉल्यूम क्या है, इनिशियल वॉल्यूम क्या है V0, मैंने बोला ये ना इनिशियल V0 अपॉन 2, तो आया इनिशियल प्रेशर नहीं पता, इनिशियल प्रेशर पता होगा तो ये सॉल्व है, इनिशियल प्रेशर आता है ऐसे, राइट। गुड, भाई देखो नीचे R है, नीचे 2 नहीं है, नीचे R है, तो इनिशियल टेम्परेचर आपको मिल गया PV0/2R। सिर्फ आपको क्या वर्कआउट करना है कि इनिशियल प्रेशर P0/2 कैसे है, बताता हूँ, बताऊँगा। सिमिलरली आपको क्या है कि आपको फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है अगर, तो आपको पता है फाइनल टेम्परेचर का फॉर्मूला P फाइनल V फाइनल अपॉन R। जैसे आपने T इनिशियल लिखा, P इनिशियल बाय R, वैसे P फाइनल V फाइनल बाय R। अब P फाइनल कैसे निकालोगे, बहुत इजी है, हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है P का, बराबर। We know that ऐसे ही आप इनिशियल प्रेशर निकालते हो जैसे फाइनल निकालते हो। P pressure is given by P0 1 plus V0 by V plus 4 at V equal to 2V0। क्यों? क्योंकि फाइनल वॉल्यूम क्या हो रहा है, 2V0, राइट। तो मुझे करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ V की जगह पे 2V0 डालना है, तो मुझे फाइनल प्रेशर मिल जाएगा V0 अपॉन 1 प्लस V0 अपॉन 2V0 स्क्वायर, ये हो गया आपका कैंसिल कैंसिल, तो P फाइनल मिल गया आपको P0 अपॉन 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/4 इज 5/4, तो 4 P0 बाय, तो आपको फाइनल प्रेशर मिल गया, तो फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा। तो कैसे करोगे वो, इट वेरी सिंपल थिंग। तो यू नो फाइनल टेम्परेचर विल बी P फाइनल विच इज 4 P0 by 5 और फाइनल वॉल्यूम विच इज 2 V0 अपॉन R। तो ये आपको मिल जाएगा 8 P0 V0 by 5R, राइट। तो अब चेंज इन टेम्परेचर आप फाइंड कर सकते हो, T फाइनल माइनस T इनिशियल, और T फाइनल है 8 P0 V0 by 5R माइनस इनिशियल जो है, इनिशियल आपके पास आया था P0 V0 by 2R, P0 V0 by 2R, तो P0 V0 by 2R, तो इसमें से P0 V0 by R आउटसाइड 8/5 माइनस हाफ आपको करना पड़ेगा, 16 माइनस 5 11 नीचे 10, तो 11 P0 V0 by 10 R, ऑप्शन नंबर बी। मैं वापस बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जस्ट यू हैव टू पे लिटिल अटेंशन टू दिस। लेट मी चेंज
व्हाइट बोर्ड। ओके, सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं अभी शॉर्टकट बताऊंगा। डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी इज पीवी बाय आर, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन की वैल्यू 1 का 1 1 होगा। हमारे पास प्रेशर का इक्वेशन दिया हुआ है, P0 अपॉन 1 प्लस V0 बाई V प्लस। जब मैं इनिशियल प्रेशर निकालने जाऊंगा तो इनिशियल प्रेशर निकालते वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि आएगा 1 प्लस V0 अपॉन V0 का स्क्वायर। क्यों ऐसा आएगा? क्योंकि आप लोगों को उन्होंने बोला ही है इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V इक्वल टू V0, बराबर। So if I do this, initial pressure will be P0 upon 1 plus V0 upon initial volume V0 बोला है क्वेश्चन में, इसका स्क्वायर मतलब P0 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब 2। इनिशियल प्रेशर, तो इनिशियल टेम्परेचर मिल जाएगा, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम बाय आर। इनिशियल प्रेशर आपके पास है P0 बाय 2, इनिशियल वॉल्यूम V0 अपॉन आर, तो ये मिल गया P0 V0 बाय 2R, राइट। अब फाइनल टेम्परेचर भी निकाल सकता हूँ मैं, P फाइनल V फाइनल बाय आर। बट P फाइनल कैसे निकाल दूंगा? सिर्फ ये जो इक्वेशन है हमारे पास प्रेशर का, यहाँ पे V की वैल्यू डालेंगे हम लोग 2V0, हमने ऑलरेडी देखा वो आता है हमारा सॉल्व करने के बाद 4V0 V0 बाय 5, ऐसा कुछ आता है, हमने अभी देखा, राइट। अभी आपको इनिशियल टेम्परेचर मिल गया, फाइनल टेम्परेचर मिल गया, तो डेल्टा टी आपको मिल जाएगा T फाइनल माइनस T इनिशियल। इसको से बात सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों को, फिर आपको मिलना चाहिए T0 V0 बाय 5। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन, देयर इज नथिंग इन दिस, राइट। गुड, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 22. An ideal gas at PVT is expanding, मतलब pressure की value P, volume V और temperature T is expanding adiabatically at to 5.66 times of its volume. मतलब final volume is to 5.66 times of initial, 5.66 times of initial, right? And half the temperature, मतलब P final is half of initial temperature. The degree of freedom F of the gas involved in W by the gas is, तो आपको यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है और वर्क डन निकालना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमको गामा मिल जाएगा तो हमारा काम इजीली होगा। तो पहले गामा कैसे निकालेंगे हमको पता है, फॉर एन एडियाबैटिक गैस Pv रेज़ टू गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब T1 V1 इक्वल टू T1 V1 रेज़ टू गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 रेज़ टू गामा माइनस 1। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे आप V1 by V2 होल रेज़ टू गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 by T1 लिख सकते हो। तो T2 by T1 मतलब T फाइनल by T इनिशियल, है ना, यहाँ से T फाइनल by T इनिशियल इज T2 by T1, दैट इज हाफ। और यहाँ पे V फाइनल by V इनिशियल, या फिर उल्टा कर दो, V initial by V final, मतलब basically V1 by V2 is 1 upon 5.66। तो ये सब्सिट्यूट करो, 1 upon 5.66 raised to gamma minus 1 equal to T2 by T1, ये आपका आ गया हाफ। गुड। तो टेकिंग gamma minus 1 थ्रू, जैसे भी आपको समझ आपको सॉल्व करना है, you should know how to solve this। basically 1 raised to anything is 1, तो बेसिकली आपको ये मिल जाएगा 5.66 रेज़ टू गामा माइनस 1 इक्वल टू 2, ठीक। फिर आप दोनों साइड पर लॉग लोगे, लॉग ले सकते हो, या क्योंकि लॉग लोगे तो सोलो, क्यों लॉग देखो, हाँ वो ऐसा आगे आ जाएगा, log of 5.66 रेज़ टू गामा माइनस 1 इक्वल टू log of 2, नेचुरल लॉग 10 दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली आंसर सेम आएगा। तो गामा माइनस 1 log of 5.66 इक्वल टू log 2, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। I am not doing this because you have to do this, तो ये आपको खुद को करना है, right? So I'll just tell you what is the value of
गामा आफ्टर सॉल्विंग ये आ जाएगा आपका 1.45। देन आपको ये पता होना चाहिए गामा की वैल्यू 1.4 कौन से टाइप की गैस के लिए होती है। अगर वो पता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मिल जाएगा 5। गामा की वैल्यू 1.4 कौन से गैस के लिए होती है अगर ये पता है, दैट इज रिजिड डायटोनिक। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 5, 3 ट्रांसलेशन के और 2 रोटेशन के। तो 5 तो मिल गए आपको, तो मतलब ऑप्शन सी और डी तो अभी हो नहीं सकता। वर्क डन तो पता होना चाहिए, मैं पहले ही बताया था। वर्क डन फॉर एडियाबैटिक NR right, T2 minus T1 upon 1 minus T1 gamma minus 1 1 minus gamma and gamma minus 1, this is up to you should know this, was it 1 minus correct। और एक चीज है कि हम लोग को तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दिया है, तो आप एक चीज और भी कर सकते हो। आप लोग बेसिकली you should first, my request is that you remember the exact formula 1 minus gamma gamma minus 1 को आपको लिखना है, that will do it good। anyways तो just for your cross check cross verification हमने थोड़ा टाइम पहले ही एक फॉर्मूला देखा था, आज ही देखा था, और मैं बोला था कि स्टेबल फॉर्मूला है, तो नीचे 1 माइनस गामा तो ऊपर T1 माइनस T2 लिखा है, मैंने क्या लिखा T2 माइनस T1 नीचे 1 माइनस गामा तो रिलेटेड T I don't know why are you saying this, but आपको ये पता होना चाहिए that when you write formulas here गामा माइनस 1 कब लिखोगे और 1 माइनस गामा कब लिखोगे, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं है then it is I can't do much here। जब T1 माइनस T2 लिख रहा हूँ तो नीचे क्या माइनस आ रहा है, जब T2 माइनस T1 लिख रहा हूँ तो नीचे माइनस आ रहा है। तो जैसे याद रखना है, तो मुझे जैसा लगता है आई एम मोर कंफर्टेबल विद माइनस गामा। इवन जब हम लोगों ने वो टीवी रेस टू समथिंग लिखा था तो वहाँ पर मैं 1 माइनस गामा के फॉर्म में लिखा, तो आई कीप इट यूनिफॉर्म टीवी रेस टू 1 माइनस गामा या फिर टीवी रेस टू गामा माइनस 1। अगर मैंने वहाँ पे गामा माइनस यूज किया तो मैं यहाँ पे भी गामा माइनस यूज करूँगा। So I try to keep it uniform. So you have to see how do you want to do it. Formulas आपको लगने वाला है, help you here. So this is RT2 minus RT1, 1 minus gamma। अभी आपको पता है RT is PV, तो P2 V2 minus P1 V1 upon 1 minus। So you just have to solve। आपको ये solve करना पड़ेगा। मैंने क्यों लिखा क्योंकि देखो in terms of PV दिया हुआ है, you have been given in terms of PV, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको P2 निकालना पड़ेगा, आपको P1 भी फाइंड करना पड़ेगा। P1 तो P है राइट, और P2 कैसे फाइंड करेंगे, दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन। खुद को सॉल्व करना है, फाइंड आउट P2, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ये V2 दिया हुआ है आपको करेक्ट 5.66 राइट, V1 दिया है B, P1 दिया है P, फिर आपको फाइंड करना है P2 गामा हमने अभी फाइंड किया, वो फाइंड करने के बाद आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एंड यू शुड गेट ऑप्शन नंबर 3 राइट। ओके सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल दिस एफर्ट्स से हमको पता है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम कैन नेवर बी जीरो, दैट इज व्हाट दैट। सो ये क्वेश्चन ओरली कैसे सॉल्व करा, ओरली सॉल्व ऐसे होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा कि जब फाइनल वॉल्यूम 5.66 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम आता है और टेम्परेचर हाफ है राइट, तो उस केस में गामा की वैल्यू 1.4 मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 राइट, तो f इक्वल टू 5 तो आएगा, वॉल्यूम तो जीरो होगा नहीं क्योंकि हम लोगों को बोला है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन डी आएगा। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ यहाँ तक भी अगर आपने कर लिया f इक्वल टू 5 बिकॉज वॉल्यूम इज चेंजिंग दैट मीन्स वॉल्यूम कैन नॉट बी सेम, तो ये भी चलेगा। इफ यू कैन रिमेंबर, आई डू रिमेंबर दिस वे प्रोसेस अगर एडियाबैटिक है
वॉल्यूम 5.66 टाइम है, टेम्परेचर हाफ हो रहा है, राइट? तो एफ की वैल्यू 5 आएगी। ये मैं डायरेक्टली याद रख लेता हूँ। If the volume is becoming 5.66 times of initial temperature is becoming half, then F is equal to 5. That is option number A or D. But volume cannot be 0 because volume is increasing. So option number D. So ऐसा भी आप याद कर सकते हो if you want. 23. Find the amount of water to increase the temperature of 1 mole of gas by 30 degree if it is expanding under the condition V is proportional to 2/3. अभी अभी हमने ये किया था, वहाँ पर सिर्फ KT रेस टू समथिंग था, अगर आपको याद होगा KT रेस टू समथिंग है ना, KT रेस टू 2/3 ही होगी। क्वेश्चन नंबर, लेट मी सी व्हिच क्वेश्चन नंबर, क्योंकि अगर वहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने निकाला तो मे भी डिफरेंटली यूज किया। लेट्स जस्ट सी इफ वी हैव डन दिस, ये दिस वन, राइट? वॉल्यूम व्हेन द टेंपरेचर चेंजेस बाय 60 केल्विन, 60 केल्विन, और वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाया गया हमने यहाँ पे समथिंग, है ना, 2/3 आर डेली, 2/3 आर डेली लिखा ना, राइट? वहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। हाँ तो सेम है, तो 2/3 आर डेली, आई टेल यू। तो यहाँ पे भी वही है, V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के टी रेज़ टू, तो वॉल्यूम क्या है हमारा 2/3 आर डेली, बराबर, राइट? ये हमने अभी तो बताया, इससे पहले भी एग्जांपल हमने किया था, राइट? 2/3 आर डेली, लेट्स ट्राई इट आउट। 2/3 आर के लिए को पता नहीं है 8.3, डेली पता नहीं क्या 30 डिग्री है, 30 केल्विन, 1 द एंड 10 द 10 इनटू बेसिकली ये 83 का डबल होगा। 83 का डबल कितना होता है 166 ऑप्शन। अगर आपको ये याद था तो कि हमने अभी अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें वॉल्यूम इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू रिलेशन k to 2/3 और वॉल्यूम का फॉर्मूला वहाँ पे 2/3 r dt आया था, इफ यू रिमेंबर दिस। तो उस केस में अभी इसे याद कर सकते हैं, इफ वॉल्यूम चेंजेस चेंजिंग एज t is 2/3, वॉल्यूम इज 2/3 r dt। लेट अस मेक इट मोर सिंपल फॉर यू, इसको बोलते हैं मील का प्रोग्रेशन। इफ t is changing as v is changing as t raised to some power x, some power x, work done will be equal to x r dt, खत्म, डन। अगर मेरे पास t raised to 5/3 आएगा तो 5/3 r dt आएगा, राइट? So this is how you make tricks of your own। अभी आपको ये ऐसा याद रखना है, correct? Right? Good. So if volume is changing as t raised to x, तो volume is x r dt, dt 30 है यहाँ पे, और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2/3 है, 2/3 r into 30, तो 20 r और r की वैल्यू 8.31 है, तो 20 into 8.31 is 166.2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। For the following graph, match the column 1 with column 2। अभी ऐसा है कि आपको कॉलम 1 ए बी, अभी ये बताना चाहिए ए बी जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, आइसोकोरिक, वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, मतलब वर्क डन इज 0, मतलब ए बी शुड मैच विद आर, है ना, राइट? तो ए बी शुड मैच विद R, small a should match with R, तो B और C में से एक आएगा, क्योंकि A to S नहीं मैच हो रहा, A to Q नहीं मैच हो रहा, ये तो हट गया। उसके बाद BC प्रोसेस, BC ये आइसोबारिक प्रोसेस है, राइट? आपको ये पता होना चाहिए आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांड करना कैसे, b0 से 3 b0 हो जाएगा, मतलब एक्सपांशन हो रहा है। आपको याद होगा बेसिक्स, जब गैस
जब वॉल्यूम एक्सपांड होता है मतलब गैस क्या करता है, पिस्टन पे वर्क डन करता है, क्योंकि एक्सपांड करने के लिए गैस अपना इंटरनल एनर्जी यूज करके पिस्टन को ऊपर मूव करेगा, तो वाटर बाय द गैस है, नॉट ऑन द गैस। तो वाटर बाय द गैस इज पॉजिटिव ऑलवेज, पॉजिटिव मतलब BC में वॉल्यूम शुड बी पॉजिटिव, मतलब वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब B should match with S, B should match with S, ऑप्शन नंबर B खत्म, राइट। या ये पता होना चाहिए when the work is done by the gas, B to C, capital B to capital C, volume is increasing, volume increase मतलब गैस ने वर्क किया, गैस पे वर्क नहीं हुआ, वर्क इज डन बाय द गैस एंड इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। ये तो कन्वेंशन है ना हमारा, वो कन्वेंशन कहाँ से आते हैं, फॉर्मूले से ही आते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है वो जो वर्क का फॉर्मूला आपने यूज किया होगा, NRT, log of V2 by V1। अभी यहाँ पे जब V2 ग्रेटर देन V1 है तो log of V2 by V1 पॉजिटिव आता है ना, इसलिए इसलिए वो पॉजिटिव होता है। तो हम लोग कन्वेंशन बना देते हैं, हम लोग बोलते हैं ए वॉल्यूम इज फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वर्क इज डन बाय द गैस, वो इसलिए पॉजिटिव आता है क्योंकि log of V2 by V1 पॉजिटिव है। उल्टा होता तो V1 इज लेस देन सॉरी V2 इज लेस देन V1 होता तो कंपैरिजन होता तो V2 V1 by V2 या तो V2 by V1 इज लेस देन 1, log of any number less than 1 0, ठीक है ना, log 0 to 1 नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये होता है पॉजिटिव। Let's go to question number 25. Right. So a mass of an ideal gas of volume B at pressure P undergoes cycle of changes shown in graph. At which point is the gas coolest and hottest? तो बेसिकली क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, x2y y2z z2x। आपको प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज दिए हुए, आपको पूछा है कि कूलेस्ट कब होगा और हॉटेस्ट कब होगा गैस, राइट। तो व्हाट यू हैव टू डू हियर इज वेरी सिंपल, व्हाट वी नो इज Pv is equal to RT, राइट। Pv is equal to nRT को पता है, तो T is equal to Pv upon nR। मैं मान लेता हूँ कि ये 1 मोल ऑफ गैस है, तो डजंट मैटर, राइट। तो जस्ट T is Pv by R। अब मतलब T is proportional to P into V, सिंपल। हॉटेस्ट के लिए P into V का प्रोडक्ट मैक्सिमम और कूलेस्ट के लिए मिनिमम, तो अभी चेक करेंगे एट पॉइंट x, एट पॉइंट x T का प्रोडक्ट P into V, P into V का प्रोडक्ट कितना आ रहा है यहाँ पे देखो 4 into 1, क्योंकि ये 4 प्रेशर और वॉल्यूम 1 मतलब 4, राइट। और पॉइंट y पे अगर आप देखोगे तो क्या आ रहा है, पॉइंट y पे क्या आ रहा है आपको देखना पड़ेगा 1 into 5 दैट इज 5, राइट। और z पे क्या आ रहा है आपको देखना पड़ेगा 1 into 1 दैट इज 1, क्योंकि डिवाइड तो r से करना ही हमको बाद में, तो ये गड़बड़ होती है ना, ये चीज़ याद रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता, यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा है। नीचे डिवाइड बाय r है ना, प्रोपोर्शनलिटी, अरे बाबा प्रोपोर्शनल ले रहे हैं हम लोग, लेकिन नीचे r से डिवाइड करोगे तो प्रोडक्ट जब मैक्सिमम आएगा डिवाइड बाय 8.31 होगा एनीवेज। तो एट x ये पॉइंट और ये वैल्यू ऑफ t ऊपर, वैल्यू ऑफ t पॉइंट p into v, व्हाट इज p into v, अभी किया हमने x पॉइंट पे 4 by r, r is 8.31, राइट, 8.31, तो रफली हाफ। y पे 5 by 8.31 और z पे 1 by 8.31। तो आप लोगों को सिर्फ देखना पड़ेगा वैल्यूज एंड देन यू शुड नो दैट ऑप्शन विल बी सी, coolest at y point to be 5 by 8.31 and hottest at z point, ये आपको देखना पड़ेगा, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, एनीवेज फॉरगेट अबाउट, आई एम नॉट गिविंग यू ऑप्शंस, यू हैव टू वर्क इट ऑन योरसेल्फ। व्हाई, क्यों बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ना ये देखा नहीं, ये एक्सिस देखो, एक्सिस 10⁵ और 10⁻⁴, तो p और v की वैल्यू डालते वक्त आप लोगों को ये ध्यान देना है। आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन, ऐसा ही तो गड़बड़ होती है, ऐसी गड़बड़ होनी भी चाहिए, मैं पूरा ही करके देता हूँ बिकॉज अदर आई डोंट वांट यू मेक मिस्टेक इन एग्जाम्स। ये तो समझा होगा
डायग्राम में देखिए तो प्रेशर आपको दिया है अपॉन 10⁵ में और वॉल्यूम आपको दिया है अपॉन 10⁴ में। तो अगर x पॉइंट पर मैं टेम्परेचर फाइंड कर रहा हूँ एट पॉइंट x, ये पॉइंट है और ये टेम्परेचर है, ओके। तो मैं क्या करने वाला हूँ PV/R। अभी P की वैल्यू क्या डालूंगा मैं 4 इंटू 10⁵, 4 इंटू 10⁵, क्योंकि यहाँ पे आपको अपॉन 10⁵ के यूनिट्स में दिया है, राइट। और वॉल्यूम क्या डालूंगा मैं, वॉल्यूम डालूंगा 1 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन R करने वाला हूँ। और R की वैल्यू आएगी आपकी 8.31। आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। यू हैव टू सॉल्व दिस। सॉल्व करने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि टेम्परेचर की वैल्यू मैक्सिमम कब आ रही है और मिनिमम कब आ रही है। द होल पॉइंट इन टेकिंग दिस क्वेश्चन इज कि गड़बड़ कहाँ होती है, ये यहाँ पे ध्यान नहीं देते हम लोग, राइट। तो वॉल्यूम is basically at point y is 5 into 10⁻⁴. Pressure at point y is 1 into 10⁵. तो यहाँ पे हम लोग ध्यान नहीं देते, तो यहाँ होती है गड़बड़। तो ये मैं आपको एज असाइनमेंट कर रहा हूँ, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन तो आपको आएगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है आपसे, राइट। गुड। क्वेश्चन नंबर 26 इज इवन सिंपलर। क्यों? PT graph of an ideal monatomic gas is given as फिगर में दिया है। करस्पॉन्डिंग PV डायग्राम क्या बनेगा, राइट। ये प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ है, उससे आपको प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में जाना है, तो कैसा बनेगा? गुड। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे इस साइकिल के 4 पार्ट, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से वापस 1। हमको देखना है कि ये कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है। मुझे एक बात आपसे समझनी है, लेकिन 1 to 2 जो मैं बता रहा हूँ, 1 से 2, 1 से 2, 1 to 2 इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब मैं 1 से 2 प्रोसेस के लिए लिख सकता हूँ प्रेशर y इक्वल टू mx, जो सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, लिख सकता हूँ ना, राइट। आई कैन राइट लाइक दिस, क्योंकि ये जो देखो ना 1 से 2 लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx प्लस c क्यों होगा, ओरिजिन से पास हो रहा है। हाँ हाँ, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टी, होता है। हमने ऐसा सीखा है कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसा एक लॉ था, ये दूसरा क्या चार्ल्स फ्रॉम दोनों में से एक था, सीखा है। मतलब प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू v, इट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक। आगे बढ़ेंगे, आइसोकोरिक। 2 से 3, 2 से 3 तो वैसे भी प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक, राइट। 3 से 4 वापस से वही सिचुएशन आ गई, आइसोकोरिक वाली और आइसोबारिक। डायरेक्शन डजंट मैटर, सिर्फ हमको देखना है प्रेशर आइसोकोरिक कब है, आइसोबारिक कब है। अभी 1 से 2 मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी कुछ डायग्राम में 1 से 2 कांस्टेंट वॉल्यूम है, ए में और बी में, सी और डी में तो नहीं है ना, क्योंकि वॉल्यूम चेंज करना है आपको, तो सी और डी में नहीं है, राइट, राइट बराबर। हाँ, लेकिन डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा ना लोगों को, डायरेक्शन। यहाँ पे 2 से 1 प्रोसेस दिख रहा है, एरो देखो, एरो हमारे पास 1 से 2 है, हाँ, फिर 2 से 3 आइसोबारिक है, यस। यहाँ पे डायरेक्शन उल्टा दी हुई है ए में, मतलब ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ आपको पीटी डायग्राम से ये पता चाहिए था कि p is proportional to t, क्योंकि वो जो लाइन है 1 2 इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब y इक्वल टू mx, y मतलब प्रेशर, x मतलब टेम्परेचर, तो p इज इक्वल टू kT, सो p इज proportional to t। ये होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, मतलब 1 to 2 और 3 to 4 आइसोकोरिक है, 2 to 3 और 4 to 1 आइसोबारिक है, और बस आपको ग्राफ मैच करना है, सिंपल है। चलो अभी 27 में आपको दे रहा हूँ असाइनमेंट, 28 असाइनमेंट वो आपको मिल जाएगा उसके एप्लीकेशन पे। सो 27 इज असाइनमेंट, 28 क्वेश्चन, एंड मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोस प्रोसेस
to be external to the maximum temperature of air during the process is. वापस से ये वही क्वेश्चन है, मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है, द सेम थिंग जो हमने पहले किया था वो भी आपको यहाँ पे करना है, तो ये भी असाइनमेंट में जाएगा। अभी भी मैंने बताया आपको सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, 28 भी असाइनमेंट में गया, क्वेश्चन नंबर 29, एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एज शोन इन टेबल डायग्राम keeping temperature constant. Work done is the process is बहुत easy, मैंने बताया था आपको। Work done is nothing but area under the curve. तो area of triangle इसको C पॉइंट बोल देता हूँ, area of triangle ABC plus area of rectangle square जो भी होगा, let us say D और E पॉइंट, so C B D E। किसी भी प्रोसेस का जो ग्राफ कर्व होता है उसके नीचे का एरिया इज वर्क डन। तो बेसिकली this and this portion is work done. So area of triangle ABC is half base into height. Base is BC, height is AC, plus area of this square or rectangle जो भी है CBDE, that is again BC multiplied by C. Okay, तो half BC, BC कैसे निकालोगे डायग्राम से, BB minus BA, राइट। AC कैसे निकालोगे, PA minus PB, राइट, करेक्ट। और CE कैसे निकालोगे, PB माइनस 0, राइट। इतना ही करना है, सिर्फ इस साइड निकालना ना, BC साइड मतलब B की वैल्यू माइनस C की वैल्यू, AC मतलब A की वैल्यू माइनस C की वैल्यू, C मतलब C की वैल्यू माइनस E की वैल्यू ऑफ प्रेशर, राइट। तो BC आपने निकाल के रखा BB माइनस BA, AC आपने निकाल के रखा PA माइनस PB, प्लस अगेन BC आपने ऑलरेडी फाइंड किया है BB माइनस BA, और CE इट इज नथिंग बट ऐसा है कि हाफ वो कॉमन निकाल सकते हो, गुड। तो इसमें से मैंने VB माइनस VA कॉमन निकाल लिया, राइट, दोनों टर्म में से। तो क्या बचा, हाफ PA माइनस हाफ PB, है ना, हाफ को मल्टीप्लाई कर दूंगा प्लस PB, राइट। तो ये आ गया आपका VB माइनस VA, हाफ PB प्लस PB इज प्लस हाफ PB, है ना, हाफ माइनस हाफ और प्लस 1 मतलब हाफ, तो हाफ PA प्लस PB, तो हाफ PA प्लस PB इंटू VB माइनस VA। कौन सा ऑप्शन दिखता है हमको, ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। सिर्फ करना क्या है, वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व निकाला, उसको सिंपलीफाई करते गए, दैट्स इट, और हमने कुछ किया नहीं है।